Thank you so much, Pramod, for joining us on this podcast and taking out time to share your insights with our global audience. Very interesting, profile and very interesting set of topics that we have to discuss with you. But before we go there, would give a formal introduction about, Pramod. He's a seasoned AI and product strategy leader with deep expertise in generative AI, machine learning, and enterprise digital transformation. With over a decade of leadership at American Express and earlier roles at Dell and SCL, he has built and scaled data driven products across global markets. He's known in the industry for combining product thinking, advanced analytics, and cloud technologies to deliver scalable AI solutions and enterprise innovation. Thank you so much, Pramod, for joining us. You are spearheading a center of excellence focused on generative AI, agentic AI, AIML, and cloud at a large global bank. Many of the organizations are experimenting with AI, but few are building enterprise-grade AI products. So, from your perspective, what is the difference between experimenting with generative AI and building a scalable, production-ready AI platform in a regulated banking environment? And what changes when an AI becomes a product rather than just a capability? Yeah. So, just to highlight, right, this, when we say that, okay, we want to build a, AI centric product, right, Hmm. that comes up with lot of important aspects, right, in terms of regulatory compliance, in terms of the guardrails, right, in these systems. So, if we do not ensure that these are in place, it is quite difficult to get the results in production. And so keeping that in mind, always, we ensure that, okay, whenever we want to focus on such key initiatives, right, we ensure that, how obviously the key things are always there, like how we want to scale a platform, right? But to build a platform, there has to be a selection of the technical architecture, the business problem, right? What we want as an outcome of it, right? And we do alignment from the business that, okay, what they want to achieve with a particular product or a platform, right? Whether it is related to a process automation, whether there is a brand impact we want to solve for, any compliance, regulatory compliance issue we want to solve for. So all these things we keep in mind, right? Do a alignment, and then we go to the next step where we say that, okay, how we propose a solution, right, with the business, and creating these systems then will make sense that, okay, what we want to achieve, right, and in what manner. Obviously, there will be some cost which will be there of the solution, but what is the ROI coming out of it is again the key. So all those things we keep in mind, and then we try to do justice in terms of the end-to-end solutioning of it, right? And now, since AI is the talk of the town, because with the advent of the generative AI, and 1 year back agentic AI also came into picture, right? So first, every organization wanted to have a Gen AI adoption. It was a big struggle, whether it is banking or pharma domain or retail. It was a quite a bit struggle for all the organizations, right? And when this came into picture, you know the other aspect was the major events which has happened, with the OpenAI system, uh, and the results were not that great for the top leaders in different countries. And then the regulation came in each country that, okay, if somebody wants to launch a OpenAI kind of a system, they have to do a compliance, ensure that the compliance is in place for that launch, right? So everybody knows about it. So I'm not taking some names, but when I'm introducing this thing, people know what I'm talking about, right? Now, to ensure that, okay, these systems are compliant, we follow all the regulations, right? And to put security guardrails, we do customization at different aspects, right? How we ensure that we can reduce hallucination for that application, right, which is built. And then different strategies where we can solve those in terms of that, right? Because these tricks can be applied by creating some security frameworks, guardrails, so that at the ground level, these security enforces that the system is compliant, right? So I'll give an example, like RAG in an organization to handle a proprietary data is important, right? So that way, it's just a technique, right, which ensures that we enforce the right thing, right? And there obviously there are a bunch of things to create a RAG, right? You have to ensure how you align with your vector database strategy, chunking strategy, to get into those things. I'll not go deep in that, but I'm just giving a flavor of it. And so yeah, those things create
it's a lot of work, right? In terms of getting end-to-end aspect, end-to-end picture of it. Also, once the product, any product or a platform is in production, ensure that it is accurate. Uh, it is not doing any hallucination. Hmm. It is not biased, because these key themes have created a major problem in the outer world, right? We know that. So now every company is cautious, every organization is cautious of ensuring that, okay, it is good to have an AI or a generative AI or a agentic AI product, but we have to ensure that the guardrails are there in place, right? Hope I'm able to cover all the, end-to-end key aspects of it. Any specific question on this from your side, Yes. then I can specifically touch upon that piece also. And I love to see that, most of the leaders tell this word guardrail, Yes. because this word guardrail is very important. Like, It's key. It's key because now the world is shaping up in such a way that advanced things which people have not think through, right? Because GenAI was a struggle, as I told you, right? Agentic AI is again is a struggle, right? But people are thinking in terms of, like, in the top forums. I am following some good forums all the time, so that I know what's happening in the market, right? So in the industry, all the major giants have come together in one of the forums where they were trying to see that, okay, can we do a agentic AI e-commerce, right? Agents doing e-commerce for you. But how? But in that scenario, how you will handle the payments infrastructure? Right? Visa will have to do something about it. Mastercard will have to do something about it. Right? So these are very high level discussions, right? And it is just the start of it, right? People are thinking in such complex ways, right? Which is never done in the past, but now it can be true in in near future, right? We don't know. But it's a lot of hard work, right, to achieve, get to that level, right? Because it is pretty easy to say a single line that, okay, we want to achieve this, but to achieve to one level, we'll have to solve different aspect, right? The business priorities, the ROIs, the cost, right? All will plays a very important role, right? In terms of what an organization wants to achieve in an effective manner, right? and it's so interesting to see that, everything is being shaped around AI. Like, since people are using Chat GPT instead of Google searches these days. Correct. And as you mentioned that, even for retail companies and D2C brands also, it's very important to have the entire experience on those kind of AI platform. Right. Uh, right from checking the product to kind of doing the payments. So the payment infrastructure also comes in. Correct. Uh, the cataloging also comes into Yes. Right. that. Right. Matlab, I kind of get fear also, because isn't it like it's again becoming a monopoly like Google is like. So अभी हमें सोचना पड़ेगा Hmm, कैसे पॉजिटिव वे में उन चीजों को हाउ टू बी इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ ओके असेसिंग दैट ओके दिस विल hmm, मेक सेंस एक पार्ट है एक किसी प्रोसेस का राइट हाँ, जिसको हम चाहते हैं कि यार ये इफेक्टिव वे में वो सो दिस अ hmm, बिग पीस वी कैन डिवाइड इट एंड देन सी कौन सा पीस इंपॉर्टेंट है किसको सोल्यूशन करने से ज्यादा हेल्प मिलने वाला है राइट सो एंड रेस्ट वी कैन इग्नोर राइट द गुड थिंग्स वी कैन टेक एंड रेस्ट which are not that relevant and great we can ignore them right for the time being but to start with we should go with the right set of rules to solve for so that is one thing lot with this thing which you have told right I would like to uh, you know highlight that what Anthropic has done, right? hmm, Everybody know it's the talk of the town, right? So now that major disruption has happened, right? That's a smart innovation the organization is doing, right? hmm, And at the same time, there's a disruption happening, right? Now all the business want to, trying to see how they can cope up with this environment, right? So because till now every organization was trying to see that okay how we can enable GenAI use cases, right? Now hmm. suddenly in last 1 year the focus came into the agentic AI aspect. Now Yes. again from leadership perspective, right? The Hmm, strategy needs to be again revised, right? In terms of how we want to enable the new technology aspect, right? In an organization, hmm, and obviously there will be we need people who upskill themselves in terms of the generative AI or AI, right? So organization will have to create a strategy around their uh, you know upskilling their resources right in the team, so that people do a good job right in terms of that. Obviously some organizations will focus on taking some talents from such organizations which are doing disruption, hmm. but then at the ground, still with the existing resources we need to upgrade them also. That's also the key, right? And Yes. so I think yeah with this new thing obviously the main disruption came from OpenAI, and then Now. uh, some people from OpenAI joined Anthropic, and then they open the Anthropic as an one of the key platforms, right? And with their major versions of Claude,
was a disruption, right, in the industry. So yeah, it is little there, but I think innovation is happening in different areas, right? We know that then there are some very smart people in different industries, right? And specifically to technology, smart people globally we have, right? Not in a single country. Right. So I think keeping that in mind, a lot of innovation happening in different places. People sometimes didn't notice, uh, but a lot of innovation I feel is happening in all the places, right? Globally. So not I will not focus that okay, US is one of them or India is one of them. A lot of innovation in India, US, and other countries. I could say that. Yeah, I mean it's up to us how we ensure that we do justice to what we want to achieve in an organization, right? We'll have to create a policy strategy around it, right, to solve for. That is so true. Like, and when we talk about, generative AI, it's often associated with content creation and chat interfaces. But in financial services, the stakes are very different. Based on your experience, where does generative AI create the most tangible value in banking? Um, any particular area that you want to focus upon? And can you share an example where an NLP or AI based automation directly reduced risk clients exposure? Right. So, see, it depends, right? How we want to achieve, as I told you, right? But still, we see that okay, what kind of a use case we want to achieve, right? And it can be in any space, right? Be it banking or pharma, doesn't matter. But the main structure around right to solution a problem remains the same, right? Like the security guardrails needs to be in place, right? The ROIs and the strategy around, right? Yes. And yeah, obviously there is a tweak required in any domain, right, to achieve that. And if I talk about specific, use cases, right, in terms of, how we want to solve for, right. So there can be some use cases in terms of, right, if I talk about in the banking environment, right, there can be use cases that are, related to the fraud, right. How we can mitigate some fraud, around if it is like a credit card aspect, right. Can be related to some transactions, right, in the bank, ACH and all, right? So can we, try to solution if you want to do agentic way, right? Can we break down the business process and can we ensure that okay, there are agents to do a specific task, right? And that specific task, obviously in the back end, the complete tech stack and other infrastructure needs to be in place, right, to achieve that. But that is really possible, right? Because we have a good amount of innovations happening in the technology space, right, as of now. So abhi kya, in sab hone ke bawajood, still we have to ensure that okay, there has to be a process around to solve for. But these are the key things, right, in terms of bank use cases, which I feel is important, right? If we want to do some and then obviously we to start with version 1 we can try to see that okay, if we want to do with version 1 we want to do any human in loop kind of aspect, right, to be effective, right, because we have to do a decision around credit decisions, right, or if it is a regulatory reporting, the stakes are pretty high in the banking environment. So that also is a strategy, right? Do we want to adopt any human in loop to start with, and once the system is stable and accurate, and slowly and gradually remove those aspects, right? So at times it is difficult to achieve exactly 100%, right, in terms of the agentic way, right, in a banking environment. And that will happen even with pharma. Pharma also comes with quite heavy regulations, right, on the security and the other security acts and because it's really important in that domain also, right, because finance and pharma is pretty high stakes are high, they are in these domains, right? So that way it is always necessary to ensure that okay, if how can we be accurate, right, in our strategy to build the solution, right? So I think from banking way, the other thing in banking I could highlight that okay, um, right, the deep sea major events has happened globally, right? Somebody is calling, right, with a particular voice that okay, give the funds out, right? So just to avoid that, if I say that okay, in the contact center use case, right, contact center can be for banks or some retail aspect also, doesn't matter. But if I talk about the bank, right, somebody some customer is calling to the bank, right, the contact center, right, and he's asking that okay, how much is my balance, what is the balance in my account, right? So so there, and before doing that, right, before the analyst is giving an answer, right, if we break down this process, right, so this is a manual process which I'm talking about. Somebody's calling, he's asking the questions, and the analyst is answering, right, whatever question here.
But if you want to do with the agentic AI way, right? So there has to be one deep seek validation first. That, okay, how we ensure that, okay, the customer is the customer who is a customer which is like original customer of a particular account, right? So we validate that with the deep seek validation. There has to be an agent which will do this deep seek validation. Then there will be a second financial agent who will give this balance information, right? After this balance information, the customer can have multiple questions. He may say that, okay, if any shares he has purchased, what is the amount of shares he has purchased? All those financial information that agent will give. But after that, if he says, okay, I want to purchase a new product and can, this person can schedule a call. So there is another agent who will schedule a call for him. So I see this process of 4-5 steps in the contact center of a call is divided into 4 or 5 agents, right? Each agent handles these queries, right, for the customer and does the task. So this is a way. So people initially will never, think that, okay, such things can happen. But now with the, innovations happening in the space of technology, I think these are pretty good things which people can leverage. So I think these use cases really create values in the banking environment, and some things can be common, as I highlighted, right? Because contact center can be for any other business also, right? Yes. So a particular business needs to be broken down into pieces, and then with the help of technology, these pieces can be stitched together, for a particular outcome which we want to achieve, right? For a particular business solution. Right. So that's the key thing. So this is a pretty kind of elaborate use case that you covered. But could you also help us understand that where must strict human oversight remain? Yes. So, as I highlighted to you, right, if it is a financial, credit risk decision, right, then human in loop is required because the stakes are high in that, right? Hmm. If it is a query related to the customer information on a particular product, that the stakes are not that high, right? It's a question and answer kind of a chatbot thing. So then it is not relevant, right? Yes, stakes are high in such a scenario where, again, somebody wants to do a deep seek validation, right, in the contact center. That is really important, right, because a lot of frauds can happen. Again, the stake is high in this scenario, right? So human in loop is there, right? When you build a version 1 of an product or a platform with the help of a GenAI or a agentic AI way, with the version 1, there can be human in loop, right, strategy for the version 1. And once it is stable, the version 1 is stable, and people align, right? The business aligns that, okay, if we can remove slowly and gradually, we can remove that human in loop. That can be done, but that will not be done like in version 1. It may happen that can be done in version 2 and version 3 of the particular product or a platform, right? And obviously, people will have to do a lot of hard work in terms of understanding how this model or application is behaving, right? All those things, once are stable, the hard work is done, then people should be aligned for that, right? If we want to move out. But yeah, for key business processes in any domain, right, be it bank or pharma or retail, people will have to follow that, right? For Yes. where the stakes are high, they have to ensure that, okay, the guardrails are there, right, to solve for. मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये जो ह्यूमन इन लूप का कंसेप्ट है, ये कहीं कंपनीज ने इसलिए तो नहीं रखा है बिकॉज वो डराना नहीं चाहते हैं एम्प्लॉयज को कि एआई विल टेक टेक अवे और वर्क, और फिर सेकंड स्टेप में जाके ह्यूमन इन द लूप हट जाएगा. मेरे ख्याल से अभी तो हमको इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि हम्म. जॉब चले जाएगा, ये सब चले जाएगा, क्योंकि अभी तो सबको समझ में आ गया है कि कभी भी किसी की भी जॉब जा सकती, पहली बात तो ये। एंड दूसरा ये है कि ये सब तो डिसरप्शन होता रहेगा। अगर हम याद करें, पहले मेन फ्रेम्स चलते थे, फिर कुछ ईआरपी का इम्प्लीमेंटेशन का काफी बज़ हुआ, बहुत सालों तक हुआ एक्चुअली। अभी हाँ. वो उस टाइप के प्रोडक्ट्स तो ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, राइट? इन सम प्लेसेस सब कुछ क्लाउड में आ रहा है, राइट? तो हाँ. ये जो डिसरप्शन हुआ, राइट, फ्रॉम योर मेन फ्रेम्स टू ईआरपीस टू योर बिग डेटा, राइट? एंड देन टू क्लाउड, and then to the AI, generative AI, agentic AI, right? It's a long journey. So ये पहले क्या होता था, डिस्ट्रप्शन 10 साल, मेजर डिस्ट्रप्शन 10, 15, 20 साल में आता था, राइट? पर ये हाँ. टाइम 15 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ, राइट? मेरे को इंडस्ट्री में लाइक क्लोज टू 20 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया है, राइट? इन 20 सालों में मैंने देखा कि ये जो डिस्ट्रप्शन है ना, ये काफी टाइम बाद आता था, बट अभी लास्ट 5 ईयर में बहुत सारा डिस्ट्रप्शन हो गया, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट जनरेटिव एआई, ऑलमोस्ट 3.5 ईयर पहले आया, राइट? जब ओपन एआई ने अपना लॉन्च किया सिस्टम, राइट? तो उसके बाद कुछ टाइम तक वो रहा, बहुत सारे
इनोवेशन हुए उस टाइम पीरियड में भी, लाइक DeepSeek from China and other stuff, right, which has happened. Even MIT is doing a lot of innovation around this, right? Google is doing a lot of innovation around it, obviously, to name four, right? So people are trying to see कि यार कैसे इसे सेल थ्रू करें, क्योंकि पहले तो ये बहुत देर में होता था, अभी बहुत जल्दी हो रहा है, राइट? तो हर बंदे को, इवन ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि बंदे को तो अपने को स्किल अप करना है, राइट? ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कैसे उनको यूज करें, राइट? बिकॉज क्या होता है, समय के संग सही जगह पे जाना बहुत जरूरी है। अगर सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं तो वर्जन होते हैं, राइट? सॉफ्टवेयर के एक सॉफ्टवेयर 20 साल बाद चला, अगर वो कंपनी कहती है आज ये सॉफ्टवेयर बंद करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, राइट? या तो उसका कोई नया वर्जन क्लाउड वर्जन में भी जाए। अगर मैं एग्जांपल दूं ऑरेकल की भी, तो ऑरेकल के ERP से, सो अभी वो ऑब्सलीट कर रहे हैं ना ERPs को, सब कुछ क्लाउड में ही करेंगे, जबकि क्लाउड उन्होंने काफी पहले लॉन्च कर दिया था, साल तो हो गए होंगे, राइट, लॉन्च। बट वो हार्ड स्टॉप नहीं था, अभी हार्ड स्टॉप हो गया, राइट? ऑर्गेनाइजेशन जो नहीं करना चाह रही थी क्लाउड को यूज, उनको करना ही पड़ेगा इम्प्लीमेंट, राइट? ऐसे ही जेनएआई के साथ भी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, जेनएआई में भी अचानक से अभी एजेंटिक एआई आ गया, तो अभी पूरा सोल्यूशन का फोकस ही हट गया ना। ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन बनेगा कि आई थिंक द राइट थिंग टू डू इज कि यार देखो कि मतलब कैसे एंड टू एंड सोल्यूशन दे, कैन वी यूज some pieces for GenAI, some pieces of the agentic AI, depends, right, what we want to solve for, right? तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को ट्वीक करना पड़ता है, बट या एट टाइम्स डिफिकल्ट है। आई थिंक अपना फोकस होना चाहिए अपने काम पे कि कैसे हम अपने को मतलब अच्छा बनाए। सेल्फ लर्निंग कर डिफरेंट फोरम्स में, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, हमें पता फोरम्स हैं, वो हमें ऑलवेज करना चाहिए फॉलो, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मैं तो बहुत टाइम से इनको फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि फिर पता चलता है यार किधर पूरा जो सोच है टॉप लीडर्स की, वो किधर जा रही है। अभी वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तो टॉप लीडर्स का ये था कि यार की थीम्स थे कि जियो पॉलिटिकल कंडीशंस जिस तरह से हो रहे हैं, हाउ टू सस्टेन इन दिस सिनेरियो। एट द सेम टाइम फिर यही पे बहुत डिस्कशन और टॉप लीडर्स का, राइट, कैसे इसे शेप अप करना है। तो आई थिंक इंडियन इंडिया में भी यही समिट हुआ अभी, उसको भी मतलब मैं टच कर ही ले, तो काफी मतलब दुनिया से तो काफी लोग आए, राइट, इंडिया में, एंड काफी मतलब इफेक्टिव रहा, राइट, क्योंकि जिनको जो अचीव करना था वो लोग तो अचीव करके चले गए। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इंडिया ने दिया, क्योंकि मुझे लगा कि यार राइट थिंग टू डू, वेरी स्मार्ट थिंग टू डू एक्चुअली। यही बिल्कुल साल का मतलब स्टार्ट का टाइम है, और पूरा पूरा डिसीजन उसके अराउंड होगा, राइट, नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ने मिलकर बनाई होगी, राइट? सो विच आई डोंट वांट टू टच मोर, बट एट हाई लेवल में जस्ट मैं आपको वो फ्लेवर भी इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ कि यार ये सब हुआ है, राइट, पिछले कुछ टाइम में। कि मतलब आई थिंक जो लोग पैशनेट है अपनी लर्निंग के लिए, अच्छा काम, तो वो पॉजिटिव साइड देखें, नेगेटिव को इग्नोर ही करने बढ़ना चाहिए, राइट? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं, कंट्रोल में उस पर हम फोकस करते हैं, जैसे पढ़ते हैं, समझते हैं कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव वे में हम सोल्यूशंस को लाएं, राइट? तो अपने को ऑब्वियसली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के संग काफी हैंड्स ऑन करना है। एंड या जब अब ये चीज टच हो गई, तो एक चीज और मेरे को हाईलाइट करने में बड़ा मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो AI में अभी क्या वाइब कोडिंग टूल्स बहुत है, ऑर्गेनाइजेशंस में पुश है कि यार वी शुड यूज इट, राइट? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि देखिए, एनी पर्सन इन द टीम इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी इफेक्टिव, एंड वो अपना काम जल्दी कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन इनेबल करती है हर बंदे को कि भाई अपना काम, आप ये बंदा अपना काम कैसे जल्दी करे, बहुत अच्छे से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज लाती हैं, UIs लाती हैं कि वो बंदे काम कर सके अच्छे से। तो उसी का एक पार्ट है कि भाई आप ये करिए, क्योंकि आप अपना काम फिर जल्दी कर पाएंगे, तो वो अच्छा है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन दैट ओके पीपल शुड ट्राई दिस। मैंने तो अपना काफी पैसा इन्वेस्ट किया डिफरेंट वाइब कोडिंग टूल्स में, सम डॉलर्स मैंने इन्वेस्ट किए, तो मुझे पता चला वो बहुत अच्छे हैं, डेफिनेटली ऑन सम टास्क दे आर ग्रेट, जो कि हेल्प भी करेंगे। आई कैन टेक नेम ऑल्सो, दीज आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स लाइक लवेबल इज देयर, Cursor AI is there, right? Figma Make AI. I loved because I have done hands-on work with that, right? I tried to solve some business use cases with that. So आप उसको कर सकते हैं, but yeah, since I understand the business and technology pretty well, so I give it okay, यार मुझे ये चाहिए, right? तो मैं उसको एक हाई लेवल चीज बोलूंगा, वो बहुत अच्छे से बना के दे देगा। बट उसमें अगर मुझे कोई स्मार्ट चीज डालनी है कि यार नहीं, मेरे को तो एक तो मैंने एक आई थिंक ये डील मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, राइट? तो फिग्मा में AI में, तो मैंने उसको बोला यार मुझे मार्केटिंग का डील मैनेजमेंट सिस्टम बना के देना है, तो वो एक हाई लेवल सिस्टम बना के देगा, आप डील को कैसे मैनेज करोगे एंड ऑल, राइट? बट मैं कह रहा हूँ यार मुझे उसमें थोड़ा सा स्मार्ट चाहिए कि ये सेल्फ लर्निंग करे सिस्टम मेरा, राइट? तो कैसे वो अचीव होगा? मे बी क्या मेरे को रीइंफोर्समेंट लर्निंग वो नहीं बताएगा, मेरे को बोलना पड़ेगा उसको कि यार इसमें तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग डालो आप, सो दैट इट बिकम स्मार्ट, राइट? विद दैट, कि मुझे पता है कि दैट्स a technology or a concept which we can use, right? So I think, so having said that, मुझे
अगर मुझे पता है कि यार ये एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है एक पर्टिकुलर एआई सोल्यूशन को सॉल्व करने की, तो मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगा, राइट? तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना अभी आप एक्सपीरियंस से सीखे, बट क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही है, राइट? तो मुझको ये सब राइट। आना चाहिए। तो उसके लिए जैसे मैं एफर्ट मार रहा हूँ कि यार मैं अलग से मैं कुछ अपना पैसा एंड टाइम दोनों लगा रहा हूँ, कुछ अलग अलग यूज केसेस बना रहा हूँ अलग अलग वाइब कोडिंग टूल्स में, राइट? क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं कि यार ये यूज करना है, तो मेरे को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, राइट? वो करने के लिए तो एक थोड़ा सेल्फ एफर्ट मानना पड़ेगा सबको। और वो करने से हर बंदा बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा ना, क्योंकि नई चीज सीखने में सबको टाइम होता है, लोग कई बार इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि डिफिकल्ट होता है। कंप्लीटली रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इट इज quite a bit of a discomfort, right, when people want to take new things, right, in any space. But I think थोड़ा सा एफर्ट मार के हम बहुत कंफर्टेबल हो सकते हैं उस नए जोन में, राइट? तो आई थिंक पॉजिटिव वे में अप्रोच करना चाहिए इन सब चीजों को, बाकी तो इग्नोर ही करना चाहिए मुझे लगता है। और चीजें सही भी होंगी, मतलब इफ यू डू द राइट थिंग्स, राइट, विद द राइट स्ट्रेटजी, राइट माइंडसेट, एंड वी आर पॉजिटिव, थिंग्स विल फॉल इनटू द राइट डायरेक्शंस। थैंक यू सो मच प्रमोद, ये पूरा बताने के लिए, बिकॉज दिस इज गोना हेल्प लॉट ऑफ लीडर्स अक्रॉस द ग्लोब. you know so uh, we'll come back to this discussion, like so when deploying LLMs, RAG architectures, that is RAG architectures, and vector databases and auto ML in regulated environments, Correct. what governance mechanisms do you feel are like non-negotiable? Yeah, so I think that is quite important, right, in terms of when it comes to the governance aspect of, right, RAG, or how we ensure that okay there is a PI protection, right, Hmm. in the customer data, right? So that is the key thing, the first thing, right, which will come in the mind, right? Okay, we are handling customer data, right? Be it bank or a retail or in any space, we have customer in all domains, right? How we ensure that we handle the PI information, right? With that, do we want to do a PI reduction layer, right, in the architecture, right? Just before the LLM processes any information. Hmm. That's one way of it, right? Uh, do we want to ensure that okay, if we are building a RAG system, because for any organization, if I want to uh, you know do implementation of a Gen AI solution, that we would need RAG, right? Now in RAG also, do we want to ensure that okay, we should have a can we enforce any document access control, right, around data lineage, around vector database governance, right? I think we should do that. So these are the key themes, right? In terms of also if you want to use any models, right? So we should be thinking in terms of okay, how we can see that okay, how we can uh, ensure that okay, prompt logging is there, right? Hmm. Output justifications techniques, right? So I think that will help us to capture those things, and obviously the again the monitoring and risk controls, right? Hallucination rates are important in that. Bias and drift are again key themes, and how we ensure that we can tackle the compliance violations, right? So I think these are the key themes around, right, we should solve for all the time, and these are non-negotiable, because if your customer information goes for a toss in an organization, it's a brand impact, right? Yes. So you can't compromise on these key themes. And we kind of were studying your profile on LinkedIn, and we found out is that you have led enterprise level auto ML initiatives that accelerate model delivery. So how does this auto ML change the AI operating model within a large organization? And from your experience, what is the right balance between a centralized AI control and a distributed AI enablement? Correct. See, I understand this aspect, right? अभी ये तो जो सिस्टम है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका कि ओवरऑल आपको स्ट्रेटजी में मेक श्योर करना पड़ता है कि यार आप ये सब इंश्योर करें, बिकॉज अभी हम अगर ये बनाने चलें कि यार एक नया सिस्टम बना, ऑब्वियसली हमें जो चैलेंजेस काफी सारे अननोन्स भी कुछ तो हमें नोन रहते हैं कि अपने एक्सपीरियंस हम ये हमें टैकल ये चार चीजें हमें सिक्योरिटी, ऑब्वियसली अगर उसकी एक्यूरेसी मेजर, दैट इज आल्सो अ की थिंग, राइट? देयर हैज टू बी स्ट्रेटजी अराउंड अडॉप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म, राइट? सो आई थिंक ये सारे एरियाज हमें ध्यान रखने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ कैसे हम ये अचीव करना चाहते हैं, राइट, की आउटकम। एंड इफ अगर वो मतलब इसमें से कुछ भी मिस होता है, तो ऑब्वियसली जो एंड प्रोडक्ट है, जो यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, राइट, वो अचीव नहीं होगा, ऑब्वियसली, बिकॉज द स्टेक्स आर हाई, क्योंकि ये कॉस्टली अफेयर है रन करना, राइट? एनी जेन्युइन यूज केस रन करना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कॉस्टली है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आपके जीपीयूज भी लगते हैं और भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, राइट, फ्रॉम क्लाउड पर्सपेक्टिव। सो हर जगह कॉस्ट है, राइट? हर जो प्रोसेस में एक पार्ट है, अगर हम कहीं पे क्लाउड यूज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट होगी,
है ना, कुछ और भी कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसकी भी कोई कॉस्ट होगी, में रखते हुए हमें मतलब ये सब बनाना पड़ता है, राइट, कि कोई भी सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हम जस्टिस कर पा रहे हैं इन सब चीजों को, तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हैं। बट या स्टिल मैं आपको मैं हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम चाहते हैं कि यार द एंड टू एंड पिक्चर स्टार्टिंग में मिस कर जाते हैं। अगर स्टार्टिंग में हम ये सोचें कि यार कैसे हमें प्रोडक्ट वाला प्लेटफॉर्म बनाना है, तो क्या हम इसको सेंट्रलाइज वे में करके एक ऑर्गेनाइजेशन में इसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ, क्या हम इस पर्टिकुलर को फुल्ली सेंट्रलाइज करना चाहते हैं पूरे प्रोसेस को, क्योंकि अगर आप मे बी ये हो सकता है कि कॉम्बिनेशन करना, अगर आप फुल्ली सेंट्रलाइज करेंगे किसी भी चीज को तो मे बी हो सकता है डिलीवरी आपकी स्लो हो जाए। तो क्या आप कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं कि यार कुछ चीजें डिवाइड हो जाएं आपकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टीम में एंड बिजनेस में, सो दैट बिजनेस फोकस करता है आपका अपने डोमेन स्पेसिफिक यूज केस में, एंड हमको भी बहुत क्लोजली काम करना पड़ेगा बिजनेस टीम के संग समझने के लिए कि यार पहले तो उनका यूज केस है क्या, उससे कंपनी को और उनकी टीम को क्या फायदा हो रहा है, राइट, कोई ब्रांड इम्पैक्ट बचता है ना, सॉल्व होता है उससे, या कोई हम ऑटोमेशन कर रहे हैं जिससे कि उनका बहुत काम कम हो रहा है और इफेक्टिव हो रहा है, प्लस कोई मतलब कोई कंप्लायंस की वजह से तो नहीं उनको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है इनकी टीम में, राइट। एंड अगेन कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली बैंक के केस में और किसी फार्मा के केस में भी मैं बोलूंगा डेफिनेटली। तो क्या हम इस पूरे कैसे एनेबल करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, वो डिसीजन में होना चाहिए, अलाइनमेंट होनी चाहिए टॉप लीडर्स की, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस लीडर्स की एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टीम की, आईएमएल की, कि आप यार कैसे इसको ले जाएंगे, हाउ वी डिवाइड दी सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मे बी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ एआई, व्हाट इट विल डू, इट विल टेक एंड इट विल डू, कि भाई पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है किसी इस एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की, पूरा सब कुछ है ना, मॉडल गवर्नेंस, और कैसे हम इसमें एक एआई फ्रेमवर्क लगाएंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा, सिक्योरिटी कंट्रोल्स कैसे पुट करेंगे, फ्रेमवर्क्स अराउंड इट, राइट। एंड बिजनेस टीम तो फोकस करेगा अपना, आपकी डिटेल्स बताएगा यूज केसेस की, राइट, Yes. एंड हेल्प करेगा, क्लोजली वर्क करेगा टेक्नोलॉजी टीम्स के संग या सीओई टीम्स के संग कि एंड टू एंड सोल्यूशन कैसे होगी, राइट। एंड ऑब्वियसली ये अलाइन करेगा कि ये कितना अचीव करने के लिए जो भी हम अलाइन करेंगे कि यार ये आउटकम होना चाहिए, राइट। अगर कोई एक यूज केस है जिसकी लेट्स सपोज कि किसी की आपकी एक यूज केस है कि आपको किसी लोन डिसबर्समेंट का केस है, यूज केस आपको साइकिल रिड्यूस करनी है, तो आप कैसे करेंगे, उसका पूरा एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हम ब्रेक डाउन करेंगे, उससे हमें तो बिजनेस बोलेगा यार आपको इस पर्टिकुलर केस में हमको चाहिए कि ऑटोमेट हो जाए प्रोसेस, मे बी टू स्टार्ट विद 90-95%, राइट। तो वो अलाइनमेंट होती है, उस अलाइनमेंट को देख के हम सोल्यूशन बनाते हैं, एंड देन वो प्रोडक्शन में आता है तो उसकी वो एक्यूरेसी देखते हैं और उसके जो भी है पूरा एंड टू एंड एस्पेक्ट चेक करते हैं, कवर करते हैं, राइट, एंड मॉनिटरिंग करते हैं, उसके बाद फिर उसका वर्जन 2 बनता है कि आप कैसे से इम्प्रूव करते हैं, राइट। तो ये क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट टीम्स के संग बहुत जरूरी है होनी, क्योंकि बिगर ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि कैसे आप शेप अप करेंगे, राइट, आपका एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे करेंगे, राइट, शेयर्ड कैपेबिलिटी के बीच कैसे होगी डिवाइड। आई थिंक कॉम्बिनेशन हेल्प्स अ लॉट, कि एक ही जगह नहीं कर सकते हैं, बट हाँ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मे बी 2 या 3 बिजनेस टीम को दे दी, 7-8 जो कि टेक हैवी हैं वो मे बी टेक्नोलॉजी एंड एआईसीओई को दे, तो इस तरीके से क्या होगा जब ये चीज डेवलप होगी, राइट, ऑर्गेनाइजेशन में, तो एंड टू एंड इसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ओन करेगा, तो लोग उस पर रिएक्ट भी करेंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंपनी को और टीम को फायदा होना चाहिए, ये सब जो हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट, कोई मेजर डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए काम करते हुए। तो ये सब अलाइनमेंट अगर स्टार्टिंग में है तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो करने से क्या होता है कि आपका एंड टू एंड जो सोल्यूशन है और जो वो आपका प्रोग्राम डेवलपमेंट का फेज है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है, राइट। ऑब्वियसली भी हम मतलब और भी बेसिक स्टफ करते हैं, जस्ट टू टच अपॉन, लाइक रिस्क रजिस्टर आप बना सकते हैं, what are your accepted risk, right, when we do a particular product development, and what can be your unknown risk, तो कुछ बफर रख सकते हैं, and then there will be some accepted risk, right, that यार अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ गई, गॉड फॉरबिड, हाउ टू हैंडल दैट, राइट। सो आई थिंक people do it, right. Accepted risk, just to touch upon, is any natural calamity happens on a particular location of an organization, right, and that's why organization क्या करती है, अपना ऑफिस इंडिया में ही अगर मैं एग्जांपल लूँ तो हर कंपनी ने 2-3 जगह रखा है ना, बैंगलोर, गुड़गांव, चेन्नई, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी वजह से एक लोकेशन में काम, तो यार दूसरी जगह तीसरी जगह, राइट। तो आई थिंक वो रहता है प्रोग्राम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रन करना है कंपनी के अंदर सक्सेसफुली, तो वो कैसे होगा, बहुत एफर्ट लगता है पूरा प्लान करने में, उसको इंश्योर करने में कि भाई अगर आप एक लीडर ने एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट आपको दिया है, तो फिर मैं तो यार बहुत ध्यान से काम करूंगा कि मैं अपना रिस्क रजिस्टर भी, मैं एक रेसी मैट्रिक्स भी, हुई रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल, कि भाई कोई प्रॉब्लम हो तो कौन हेल्प करेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, अब मेरे को अभी डिफाइन करना है, डिफरेंट लीडर से अलाइन करना है, उनका ईमेल आईडी, फोन नंबर रखना है अपने प्रोजेक्ट प्लान में, सो दैट
वो पर्टिकुलर लीडर अपने 2 बंदे लगा के देखा कि यार ये 2 बंदे हेल्प करेंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगले 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने जो भी है, हुँ। राइट? तो उससे क्या होगा कि मैं जब एक प्रोग्राम डिलीवर करवा रहा हूँ, तो मेरा तो प्रोग्राम हिलने का चांस बहुत कम हो जाएगा क्योंकि मैंने तो सब कुछ प्लान कर रखा है। ऑब्वियसली मैंने बोला अननोन भी आते हैं, उसके लिए कुछ बफर रखना पड़ता है। उसके बाद ही हम कमिटमेंट करते हैं कि यार ये देखिए इसमें इतना टाइम लगेगा, ये डिलीवरी एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है बिज़नेस लीडर से, अपने अपने बॉस से, अपने लीडर से और डिफरेंट टीम्स जो भी इसमें इन्वॉल्व है, राइट? उनके संग एक क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए अपने प्रोग्राम फेज़ का। वो रिपोर्टिंग आपकी वीकली भी हो सकती है, अलाइन करके कि यार वीकली कर लो, मंथली कर लो, ऑब्वियसली वो हुँ, तो ट्रैक होता ही है रिपोर्टिंग तो उसके बिना तो काम नहीं चलता, राइट? अगर हुँ, कोई इश्यू है तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, हुँ। राइट? कि मैंने जस्ट एक प्रोग्राम का फ्लेवर टेस्ट करा जस्ट क्योंकि अगेन आई एम पैशनेट राइट अबाउट दिस टॉपिक ये भी है। And and Pramod, like, how does this entire thing of product management changes when you are building an AI native product as compared to a deterministic software system? देखिए आप ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है ना ये टॉपिक भी मेरे हार्ट के बहुत करीब है कि क्या होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो Mm. एक प्रोडक्ट को आप कस्टमाइज करके इम्प्लीमेंट करते हैं, Yes. राइट? या Mm, फिर आप अपना ही प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट या प्लेटफॉर्म डेवलप, 3 सिनेरियो तो बहुत ही कॉमन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में नीड कैसी है, राइट? कोई प्रॉब्लम है उसके लिए कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता है, राइट? मैं मे बी हल्का सा टच कर देता हूँ सो दैट ये क्लियर हो जाएगा। इसको ऑडियंस हमारी स्मार्ट है बट जस्ट मैं टच कर देता हूँ हाँ, कि जब एक मेरे को अगर एक बना बनाया प्रोडक्ट है तो एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। अगर एक ऑरेकल कंपनी का बहुत ही स्मार्ट प्रोडक्ट है, अगर mm, किसी ऑर्गेनाइजेशन में P2P साइकिल को mm, तो उसका अगर मैं उससे पेमेंट भी करना चाहता हूँ, 3-4 मॉड्यूल है उसके, तो कैसे आप उसे हैंडल करेंगे? वो एक स्मार्ट प्रोडक्ट है उनका, राइट? नाउ ये तो एक तरीका होगा और मेरे को बिज़नेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई छोटी-मोटी चीज़ें तो मैं अंदर भी कुछ कस्टमाइज़ करके कोडिंग करके कोई प्रॉब्लम सो जनरली डी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो बहुत ही वो देखती हैं कि यार कौन-सा सॉफ्टवेयर इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ताकि टाइम ना वेस्ट हो बनाने में खुद से। और mm, लाओ सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करो mm, और अपना बिज़नेस रन करो बढ़िया से इफेक्टिव वे में। क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसने प्रोडक्ट बनाया है, मैं ओरेकल का ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया जब वो आया क्योंकि mm, कैसे आप ग्लोबली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, वो mm, प्रोडक्ट ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता है आपकी, राइट? यू mm, गेट योर रिपोर्ट्स ग्लोबली विद दैट। तो फोकस वहाँ पे रहता है। नाउ mm, अब जो जिस तरीके के प्रोडक्ट्स आए मार्केट में सबको पता है व्हाट्सएप, राइट? इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, राइट? देयर आर मैनी एंड देन पीपल जो भी ऐप यूज़ कर रहे हैं मोबाइल में सारे प्रोडक्ट्स ही हैं। और प्लेटफ़ॉर्म की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही इफेक्टिव प्लेटफ़ॉर्म जो सब यूज़ कर रहे हैं, सबको पता है ऑलरेडी यूट्यूब है। mm, mm, तो वो एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे लोग जाके हाँ, अपने मतलब लर्निंग के लिए और मतलब काफ़ी mm, सारे तरीके से उसे प्रोडक्ट एंड प्लेटफ़ॉर्म जैसे मैंने आपको बताया ये कि आप कैसे बनाते हैं। अभी ये सबको पता है, मैं ये mm, इसमें कुछ ऐसा कुछ छुपा नहीं है, सबको पता है कि यार क्या प्रोडक्ट है और क्या प्लेटफ़ॉर्म है। ठीक है ना? मैंने बोला ऑडियंस हमारी स्मार्ट है। mm, उसमें क्या है ये चीज़ें जो बनाने की हम सोचते हैं कि यार कैसे हम इफेक्टिव वे में बनाएँ ऑर्गेनाइज़ेशन को, तो यही एक डिस्टेंस होता है। कई बारी हाँ, क्या होता है कि प्रेशर होता है कि भई आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है 6 मंथ्स में। mm, तो उस mm, केस में क्या होगा अगर आपकी टीम बड़ी नहीं है तो आप 6 महीने में तो वो प्रोडक्ट बना के नहीं ला या mm, प्लेटफ़ॉर्म नहीं कर दोगे 6 महीने में तो आप। mm, तो आप mm, क्या कर सकते हो? आप लीडरशिप को ऑप्शन दे सकते हो कि भई अगर हम अंदर बनाएँगे, अगर अपनी टीम से बनवाएँगे, हो सकता है 10 महीने लग जाएँ, हो हाँ, सकता है 12 महीने लग जाएँ। mm, बट अगर आप मार्केट में मैंने रिसर्च करी है टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से ये एक रिकमेंडेशन है मेरी कि मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप क्या करेंगे वो प्रोडक्ट ला मतलब आपने पिच करा, लीडरशिप को पसंद आया, अप्रूव हो गया तो देन यू साइन द डील एंड देन प्रोडक्ट को लाओ और इम्प्लीमेंट करो अपना काम 6 महीने के अंदर आपको वो मिल जाएगा फटाक से। mm, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई 6 महीने में, राइट? क्योंकि mm, स्पीड इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशंस में। टाइम टू मार्केट हैज़ टू बी फास्ट, राइट? yes. देन Mm, कॉस्ट थोड़ा फिर नीचे हो जाती है। ऑब्वियसली वी कांट बी फ्रूजाइल बट mm, क्या हमें चाहिए वो अलाइनमेंट तो करनी पड़ती है, राइट? अपना सॉल्व करना है। mm, तो उस केस में क्या होता है कि ये क्लैरिटी, ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गूगल एंड याहू तो ये सब बहुत पहले से करता है, लाइक द प्रोडक्ट थिंकिंग एंड प्रोडक्ट वे ऑफ वर्किंग। mm, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करते थे। बट mm, पिछले कुछ टाइम से बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने समझा, पहले तो कुछ खास ऑर्गेनाइजेशंस ने समझा कि ओके क्या है mm, ये एंड कैसे mm, हम अडॉप्ट करें क्योंकि पहले पूरी दुनिया पूरी कंपनीज अजाइल में बहुत सालों से डिलीवरी कर yes. रही थी। यहाँ पे आप बिग बैंग अप्रोच करते हैं, आप भी इस बैकग्राउंड से आपको सब पता है। बट हाँ, दिस ये जो अजाइल आया कुछ साल पहले आया और अजाइल में सबने कहा यार हम पीआई प्लानिंग करेंगे, हम स्क्रम प्लानिंग करेंगे, उसमें डिलीवर करेंगे। एवरी 15 की स्प्रिंट होगी, 15 डेज की या व्हाटसोएवर वी अलाइन राइट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो mm, वो चेंजेस जो है वो मतलब वो जो गूगल बहुत सालों से कर रहा था, याहू बहुत सालों से कर रहा था, वो बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने भी करा क्योंकि उन्होंने देखा ये इफेक्टिव है टू हाँ, डिलीवर a mm, product or a platform in an organization. So mm, I think these are really important and
प्रोडक्ट आपको इंश्योर करता है इसमें कि आपका एक तो आप एक आपका मिनिमल वायबल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो कि थीम्स एंड की फीचर्स आपकी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है हुँ, 6 महीने में। लेट्स टेक एन यस। एग्जांपल, हुँ, प्रीटी क्विक। हुँ, एंड जो बाकी आपकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें वो आप एक बैकलॉग बनाते हैं और उसमें करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिलीवर करते हैं, तो हुँ, वो चीज तो चाहिए 6 महीने में, राइट? हुँ, कुछ नॉन नेगोशिएबल आइटम होंगे जो चाहिए होंगे 6 महीने में आपके सोल्यूशन में, बट हुँ, कुछ ऐसे भी होंगे कि यार इसको आप यू नो इग्नोर करें and उसको मतलब आगे बैकलॉग में आप डाल के ला सकते हैं। तो यस। ये की थीम्स है अराउंड। एंड मैंने काफी मतलब फॉलो करी है कुछ अच्छी चीजें प्रोडक्ट में भी। तो प्रोडक्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, राइट, इन यूएस, तो मैं वो फॉलो करता हूँ, उनके देखता हूँ कि यार वहाँ पे गूगल के बंदे आके बोल के जाते हैं और भी हैं। और मैंने भी आज से 2-3 साल पहले एक वहाँ पे एक प्रोडक्ट पे ही मैंने एक अपना सेशन शेयर किया था हुँ, ऑनलाइन। मेरी बहुत लर्निंग हुई, काफी लोग आए और मुझे हुँ, मतलब लेफ्ट राइट क्वेश्चन पूछे। तो आई थिंक अपने को टफ स्पेस में डालने से मुझे भी बहुत फायदा हुआ, क्योंकि काफी चीजें पता चलती हैं जब लोग आपसे कुछ पूछते हैं, और अगर नहीं पता होती तो हम जाके वापस पढ़ते हैं। तो वो एक चीज है। तो आई थिंक ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन आप बहुत क्विकली कोई किसी प्रोडक्ट या प्लेटफॉर्म को लाना। तो ये जो 3 तरीके मैंने बोले पहले, इस पे डिसाइड होता है, राइट, इसमें इफेक्टिव है उस पर्टिकुलर यूज केस के लिए, उसके बेसिस पे स्ट्रेटजी डेवलप होती है एंड देन हम प्रोडक्ट बनाते हैं। नाउ अगेन इट डजंट मैटर कि वो एक हुँ, नॉर्मल प्रोडक्ट था या जेनीआई प्रोडक्ट था, तो फिर हुँ, वो नेक्स्ट चीजें। बट पहले अगर एक बार ये अलाइन कर लिया, आपको चाहे एक जेनीआई एजेंटिक आई बनाना है प्रोडक्ट या लेना है, तो वो सब बेसिक वही रहेगा स्ट्रक्चर। चीजें हुँ, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएंगी, राइट, एज पर यस। व्हाट वी वांट टू अचीव। Got it. And now the last question is that if you look ahead, say 5-10 years, मतलब 2-3 साल देखें अगर, so how do you see generative AI, agentic AI shaping enterprise software in banking and beyond? करेक्ट। ये आई मीन मैं तो कोई टाइम कोट नहीं कर सकता, क्योंकि इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, मतलब सालों का, महीनों। बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ऑब्वियसली जैसे मैंने टच किया था ये पीस भी, कि यार पहले अगर आप करना चाहते हैं मे बी अ पर्टिकुलर यूज केस इन जेनीआई और एआई, राइट, तो पहले तो हुँ, ये देखिए कि आपके लो हैंगिंग फ्रूट क्या है और क्या उनमें आपको रिटर्न बहुत जल्दी मिलने वाला है, राइट। तो आपकी कॉस्ट कम लगनी चाहिए लो हैंगिंग फ्रूट्स में, और इफेक्टिव होना चाहिए, कुछ तो फायदा होना चाहिए, राइट। तो आई थिंक वो एक माइंडसेट रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और क्या एक कोई कॉम्प्लेक्स पीस है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं उससे, हुँ, और हुँ, कॉस्ट डिसेंट लगेगी, बट द इम्पैक्ट इज हाई फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और पर्टिकुलर यूज केस, हुँ, उसको भी देख सकते हैं कि यार ठीक है, मतलब 100 यूज केस आ गए मेरे पास, अब क्या मैं हाँ, 100 के 100 करके बैठूंगा? नहीं। 100 में से हुँ, मैं पहले तो मेरे को प्रॉब्लम है कि यार उसमें से हाई वैल्यू यूज केस बाहर निकालना, 100 हुँ, में से कौन से टॉप 10 यूज केस है जिससे वाकई कुछ मेरा हेल्प होगा, अदरवाइज तो मेरा पैसा लॉस्ट हो जाएगा हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में, वो तो मैं हुँ, कर नहीं सकता। तो पहले उसमें से एक्चुअल हाई वैल्यू हाई इंपैक्टफुल यूज केस लाना, किसको पिक करना? आइडियली तो टॉप वाले, मतलब कॉम्प्लेक्स, जिससे बहुत फायदा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड इम्पैक्ट, बेनिफिट, ऑटोमेशन में, वो करना चाहिए। बट अगर ठीक है, साइड में अगर कोई लो हैंगिंग फ्रूट है तो उसको भी अगर हम टच करना चाहते हो, अगर टीम में बैंड तो उसको भी हम सोच सकते हैं। बट पहले हुँ, तो टॉप वैल्यूज को ही हमें यू नो ब्रेक करना चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो जी, दैट इज द की थिंग। सो अगर हम बात करें कि यार कैसा रहेगा, तो हुँ, या ये जो बिजनेस प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या अगर मैं बैंक की बात कर दूं, तो यार अगर कोई मतलब मेहनत तो क्या बोलूं, बट एक प्रोसेस है, राइट। जैसे कि भाई कॉन्टेक्ट सेंटर में कॉल आया, तो बैंक एनालिस्ट तो इन्फॉर्मेशन दे ही रहा है, तो उसका टाइम चले जाता है ढूंढने में, वो अपना नॉलेज बेस सर्च करता है यार कि हुँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी पूछ ली बंदे ने, तो उसका टाइम चले जाता है, हुँ, राइट। तो अगर हम ये सोल्यूशन बनाते हैं इस तरीके की एजेंटी के, तो ये ऑटोमेट हो जाएंगे, या फटाफट आपको डिसीजन दे देंगे कि यार ये चाहिए, वो क्वेश्चन डाला आपने, वो आंसर आ गया, तो आपका तो मतलब बहुत टाइम बच जाता है। और वो अगर वो ऑटोमेट हो गया तो नथिंग लाइक इट। तो ये यस, चीजें रहेंगी आने वाले समय में। हो सकता है मतलब 6 महीने में कुछ और डिसरप्शन हो जाए इस चीज में, यू हाँ, नेवर नो। मुझे ये लगता है कि हाँ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बहुत एफर्ट मार रही है जेनेटिव एआई एआई को लाने के लिए, बैंक में, रिटेल में, कहीं भी, क्योंकि मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो रिटेल में है या और भी इंडस्ट्री में है, कंसल्टिंग में है, फार्मा में है, तो मैं उनसे बात करता रहता हूँ। तो मुझे पता चलता है कि यार काफी एफर्ट लग रहा है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि ये हो, और हुँ, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सही ही करती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का रीजन ये है कि यार मेरे बंदे बहुत इफेक्टिव काम करें। हाँ, एंड अगर वो इफेक्टिवली करेंगे तो ऑब्वियसली कंपनी को प्रॉफिट होगा, हुँ, जो कि सही है, क्योंकि कंपनी भी बहुत एफर्ट डालती है यार, बहुत इन्वेस्ट करती है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एवरीथिंग, राइट, बहुत एनर्जी लगाती है एक अच्छा कल्चर बिल्ड करने के लिए एम्प्लॉइज के लिए। हुँ, तो आई थिंक मतलब एम्प्लॉय को भी बहुत एफर्ट मारना चाहिए कि हुँ, वो एक अच्छा काम करे अपनी टीम के लिए, अपनी कंपनी के लिए। कहीं पे पैसे बच सकते हैं तो बचाए, ऑब्वियसली, मतलब दिमाग, लॉजिक के संग। हुँ, तो आई थिंक विन विन सिचुएशन होगा। यस, बिजनेस प्रोसेस में मुझे लगता है ये सब चीजें हैंडल होंगी अच्छे से। डिपेंड करना पड़ेगा कि भाई आपको एक
पहले बेसिक प्रोसेस क्या, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स भी करना है तो उसके लिए भी थोड़ा सा अलाइनमेंट लगेगी, और क्विक पीओसीज करके, मतलब फेल फास्ट एंड सी हाउ वी Yes. कैन इम्प्रूव एंड टेक दोस सॉल्यूशंस टू द प्रोडक्शन, राइट? Thank you so much, Pramod, for joining us and sharing, this insightful discussion. काफी मजा आया बात कर। मैं तो आपके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया कि यहाँ पे मैं आके, मतलब इस प्लेटफॉर्म में आपके संग बात कर सकूँ, अपना नॉलेज शेयर। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई रियली अप्रिशिएट जो आप काम कर रहे हैं, जो मुझे लगा काफी इंस्पायरिंग है। मतलब मेरे को तो बहुत इंस्पायरिंग लगा, जो हार्ड वर्क आप करते हैं डे इन डे आउट, इतने सारे लीडर्स के साथ, वो मतलब उसके लिए तो सल्यूट है आपको। मैं, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है कि मैं क्या बोलूँ, वो नंबर इतना बड़ा है कि आप कितने सारे लीडर से बात, दिन में आपको कितने लोगों से करना पड़ता है। आपका प्लेटफॉर्म काफी स्केल हो गया है, तो मतलब मुझे तो लगता है आप तो, मुझे लगता है इजीली 500 लोगों से ऊपर ही आपका रेगुलर टच में रहता है, राइट? और वो बहुत, अगर आप 5 मिनट भी किसी को देते हो एक दिन में, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस चीज़ के लिए, राइट? तो कैसे आपने एक यंग एज में ये सब बिल्ड किया, इट्स अ इंस्पायरिंग थिंग, राइट? वो तो कभी कोई डिकोड नहीं कर पाएगा। सर, आप ही इंस्पायर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जैसे लोग ही इंस्पायर करते हैं ये सब काम करने के लिए। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल कि आपने टाइम निकाला और इतना इतना सारा बात किया हमसे। अगेन, वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल दैट यू टुक आउट टाइम। No worries. Thank you so much, Shikesh, for your time and effort here. We'll be in touch for sure, right, Absolutely, right sir. in future. Thank you so much. Thank you. Have a great day. Bye-bye.